کرتا ہے، پھر بھی آپ اپنے نفس کی ملامت کیجئے اور کہیے کہ تیرے لیے میں نے گناہ کر لی۔ ساتھیوں، زندگی کا محاسبہ ہے، زندگی کا محاسبہ تو اس طرح بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی مومن بندہ ہے، اللہ سے خوف کھانے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اگر وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کرتے ہیں، ان کا گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے، کسی پہاڑ کے نیچے، اور پہاڑ اس کے اوپر ہے، کب اس کے اوپر پہاڑ گر جائیں۔ حقیقت میں میرے مومن بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، اگر واقعی آپ اللہ والے ہیں، واقعی آپ دین والے ہیں، واقعی اگر آپ محمد الرسول اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، واقعی اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آپ متقی انسان ہیں، تو آپ گناہ کر کے چین کی نیند نہیں سو پائیں گے، گناہ کر کے آپ اطمینان کی نیند نہیں سو پائیں گے۔ گناہ کرنے کی بعد آپ کو فکر رہے گی کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا یا نہیں، اور آپ ایسا سمجھیں گے کہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے اور وہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائیں۔ لیکن اگر آپ متقی نہیں ہے، آپ پرہیزگار نہیں ہے، آپ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو آپ چاہے کتنا بڑا ہی گناہ کیوں نہ کر جائے، شراب پینا لی جائے، چاہے آپ جوا ہی کیوں نہ کھیل لو، چاہے آپ دنیا میں کسی کا قتل ہی کیوں نہ کر دو، چاہے آپ دنیا میں کسی پر ڈاکہ ہی کیوں نہ ڈال دو، دنیا میں ناجائز کسی کی زمین میں حرف کیوں نہ ہلو، میرے پیارے ساتھیوں، آپ ایسا سمجھیں گے کہ آپ کی ناک میں مکھی بیٹھی ہو، ہم نے ان مکھیوں کو اشارہ کیا چٹکی میں اور مکھی اڑ گئے، آپ نے ویسے ہی اپنے قرآن کو محسوس کر لیا کہ ناک میں کوئی مکھی بیٹھی ہے، مکھی کو بھگانا ہمارے لیے آسان ہے۔ اگر آپ واقعی مومن ہیں تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کریں گے، پھر بھی آپ کو لگے گا کہ آپ کسی پہاڑ کے نیچے ہیں، اور وہ پہاڑ کب آپ کے اوپر گر جائیں آپ کو ڈر ہے۔ لیکن اگر آپ مومن نہیں ہیں، آپ کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، آپ کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو آپ گناہ کو یوں سمجھیں گے جیسے آپ کی ناک میں مکھی بیٹھی ہو، اور وہ مکھی کب بھگ جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، ان العبد اذا اخطأ خطیۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب بندہ غلطیاں کرتا ہے، جب بندوں سے گناہ ہو جاتا ہے، جب بندوں سے غلطیاں ہو جاتی ہے، جب انسان خطا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ڈال دیتا ہے، ایک سیاہ دھبا ڈال دیتا ہے، ان کے دل میں ایک سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے، سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، اگر وہ بندہ اپنے اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں، وہ سیاہ نقطہ دھیرے دھیرے مٹ جاتا ہے، وہ سیاہ دھبا دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ دھبا دھیرے دھیرے میرے پیارے ساتھیوں اس کے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، وہ دھبا پھر اس کے جسم میں پورے پھیل جاتا ہے، اور پھر وہ یہ نہیں سوچ پاتا ہے کہ کوئی نمازی ہے، کوئی بے نمازی ہے، یعنی نمازی اور بے نمازی سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو نماز پڑھنے والا بھی ویسا ہی دکھے گا اور نہ پڑھنے والا بھی ویسا ہی دکھے گا، ایک کافر اور ایک مومن کے اندر اسے فرق نظر نہیں آئے گا، حلال اور حرام میں ان کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ میں سے اگر کوئی کسی گناہ میں ملوث ہے، کوئی کسی گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، تو اپنی زندگی کے بارے میں غور کرے کہ نبی اکرم کا فرمان سچا ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے توبہ نہیں کیا اور یہ نیت نہیں کی کہ ہم آج کے بعد سے اس گناہ کو نہیں کریں گے، تو میرے بھائیو یقین جانیے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ دنیا کا کوئی گناہ ہمارے نزدیک گناہ ہی نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ، وہ دھبا مٹ جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں دھیرے دھیرے جسم میں پھیل جاتا ہے، پھر نمازی، بے نمازی، روزے دار، غیر روزے دار، اس کو فرق نظر نہیں آتا ہے۔ ایک نماز پڑھنے والے کی حیثیت ان کے نظر میں اتنی ہے جتنی حیثیت نماز نہ پڑھنے والے کی ہے، نماز نہ پڑھنے والے کی حیثیت ان کے نظر میں اتنی ہے جتنے نماز پڑھنے والے کی۔ میرے بھائیوں یقین جانیے، اگر کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے، تو توبہ کیجئے، وہ نقطہ مل جائے گا۔ اگر توبہ نہیں کرتے ہیں، گناہ ہی گناہ کرتے جا رہے ہیں، تو دھبا دھیرے دھیرے اپنے جسم پہ پھیل جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों की मुलाकात होती है। एक दूसरे को सलाम करता है, सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछता है कि बताओ खैरियत से हो या नहीं, आपकी हालात कैसी है, आपकी कैफियत इस वक्त कैसी है, आपका हाल कैसा है। हंज़ला कहता ओ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैं क्या बताऊं, ओ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैं क्या बताऊं, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया है, हंज़ला मुनाफिक हो गया है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा हंज़ला कैसी बात कर रहे हो, क्यों मुनाफिक हो गए हो। हंज़ला कहता है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनिए, मैं मुनाफिक इसलिए हो गया हूँ क्योंकि मैं जब नबी के मजलिस में होता हूँ, जब मेरे सामने जन्नत का जिक्र किया जाता है, जब मेरे सामने जहन्नम का जिक्र किया जाता है, नबी की मजलिस में होता हूँ तो ऐसा लगता है कि जन्नत में टहल रहा हूँ, जहन्नम की आग से बच गया हूँ। जन्नत और जहन्नम हमारी आंखों के सामने है, लेकिन नबी की मजलिस छोड़ देता हूँ, अपनी बीबी के पास चला जाता हूँ, अपने बच्चों के पास चला जाता हूँ, अपने कारोबार के पास चला जाता हूँ, तो उस वक्त हमारी कुछ अलग हालत होती है। वहाँ जन्नत याद नहीं रहती है, जहन्नम याद नहीं रहती है। हंज़ला ने क्या कहा कि जब नबी की मजलिस में होता हूँ तो कुछ उस वक्त कुछ हालत होती है, और जब नबी की मजलिस को छोड़ देता हूँ उस वक्त कुछ हालत होती है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा हंज़ला अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ मेरा भी वही हाल है कि जब मैं नबी की मजलिस में होता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जन्नत में टहल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जहन्नम से बच गया हूँ, लेकिन जब नबी की मजलिस छोड़ देता हूँ, बीबी के पास आता हूँ, बच्चों के पास आता हूँ, तो बीबी का टेंशन है, बच्चों का टेंशन है, घरेलू मामलात है, न जन्नत याद रहती है न जहन्नम याद रहती है। मेरे भाइयों चलो एक काम करते हैं, नबी अकरम के पास जाते हैं और जाकर बताते हैं क्या ऐसा वाकई मुनाफिक की अलामत है, क्या वाकई हम दोनों मुनाफिक हो गए। दोनों नबी अकरम के पास गए और कहा कि अल्लाह के नबी हंज़ला मुनाफिक हो गया है। आपने कहा क्या बात कर रहे हो, अरे अबू बकर क्यों ऐसी बात कर रहे हो कि मुनाफिक हो गए हो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा अरे अल्लाह के नबी हम लोग इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं क्योंकि जब आपके चौखट में होते हैं, आपके दरवाजे में होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जन्नत में हूँ, ऐसा लगता है कि जहन्नम से बच गया हूँ। जब आपकी मजलिस को छोड़ देता हूँ तो उस वक्त कुछ अलग हालत होती है। तो आपने फरमाया हंज़ला अबू बकर सिद्दीक तुम लोग मुनाफिक नहीं हुए हो, तुम दोनों मुनाफिक नहीं हुए हो। यानी हमारी मजलिस में जब होते हो तो उस वक्त कुछ अलग हालत होती है, और जब छोड़ देते हो उस वक्त अलग कैफियत होती है। ये वक्त की बात है। अगर तुम हमेशा जन्नत को याद करते रहे, जहन्नम को याद करते रहे, तो फरिश्ते तुमसे मुसाफा करें रास्तों में, रातों में। मेरे प्यारे साथियों ये वक्त की बात है। थोड़ी देर के लिए लगा कि हमने जन्नत को भुला दिया, जहन्नम को भुला दिया, तो क्या कह रहे हैं कि मुनाफिक हो गया। लेकिन हमारे अंदर कितने ऐसे मुनाफिक वाला अमल भरा है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान कह रहे हैं। और मेरे भाइयों मुनाफिक की अलामत तो ये है कि मुनाफिक जब बात करें तो झूठ बोले, जब उनके पास कोई अमानत रखी जाए तो खयानत कर डाले, जब झगड़ा हो तो गाली गलौज करे। मेरे प्यारे साथियों अब गौर कीजिए, जब वादा करें तो वादा खिलाफ करें। हमारे अंदर मुनाफिक वाला कितना अमल भरा पड़ा है, फिर भी हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, पक्का सच्चा मोमिन कह रहे हैं। हंज़ला को थोड़ी देर के लिए लगा कि जन्नत हमारी आंखों के सामने नहीं है, जहन्नम हमारी आंखों के सामने नहीं है, तो अपने आप को कह रहे कि मुनाफिक हो गया। मुनाफिक की अलामत तो यह है जब बात करें तो झूठ बोले, वादा करें तो खिलाफ करें। और मुनाफिक का क्या ठिकाना है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार। मुनाफिक का तो हिस्सा, मुनाफिक का तो मकाम जहन्नम के सबसे निचले गड़े में होंगे। जहन्नम की गहराई हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अचानक एक मर्तबा धमाके की आवाज आई, सहाबा किराम बैठे, नबी अकरम की मजलिस है। आपने फरमाया ओ मेरे सहाबा बताओ ये आवाज कैसी है। आप सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल आप ही बताइए कि ये आवाज कैसी है। तो आपने
फरमाया आज से 70 साल पहले जहन्नम में एक पत्थर गिराया गया था, एक पत्थर डाला गया था जो 70 साल तक उस जहन्नम की तह तक जाकर आज पहुंचा है। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ी देर के लिए उन्हें लगा कि हम जन्नत को भूल गए, जहन्नम को भूल गए, तो क्या कह रहे कि मुनाफिक हो गए। गौर कीजिए अपनी जिंदगियों पर कि हम मुनाफिक वाला अमल कितना करते हैं। आज के बाद से मुनाफिक वाला अमल मत कीजिए। मेरे भाइयों, जहन्नम भी अगर मिल जाए ये मुकद्दर की बात है, लेकिन जहन्नम मिलने के बाद भी अगर मुनाफिक वाला अमल रहा आपका तो जहन्नम के सबसे निचले गड़े में होंगे और उसकी गहराई एक पत्थर को ऊपर से अगर डाला जाए, फेंका जाए तो 70 साल लग जाता है उसकी तह तक पहुंचने में। मेरे प्यारे साथियों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और तुम में से हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालो, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। पहले जहन्नम से खुद बच जाओ, उसके बाद अपने कुंबे कबीलों को जहन्नम की आग से बचाओ, उसके बाद अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे प्यारे साथियों, वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, जहन्नम की आग दुनिया के पेट्रोल से नहीं जलेगी, डीजल से नहीं जलेगी। जहन्नुम की आग लकड़ी से नहीं जलेगी, जहन्नुम की आग गैस से नहीं जलेगी। जहन्नुम की आग अगर जलेगी तो पत्थर से जलेगी, जहन्नुम की आग अगर जलेगी तो इंसान से जलेगी। यानी मेरे प्यारे साथियों, वो जो जहन्नम में आग होगी वो जलेगी, इंसान से जलेगी और पत्थर से जलेगी। इंसान को उसमें डाला जाएगा और जहन्नम की आग इंसान से जलेगी। पेट्रोल में अगर आग लग जाए तो मेरे प्यारे साथियों, हम और आप गौर कीजिए कि पेट्रोल में आग लग जाए वो आग कितना भड़क रही है, लेकिन जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं, डीजल से नहीं, बल्कि इंसान से जलेगी। तो आप गौर कीजिए कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा ठिकाना जहन्नम कर दिया तो जहन्नम की आग हम ही से जलाए जाएंगे। इसलिए पहले अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने कुंबे कबीलों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। दुनिया में आपका बच्चा अगर कहीं पर जल जाए, आपका बच्चा किसी मकान पे आग लगने की वजह से जल जाए या कोई आग में जल जाए तो आप उनकी जली हुई लाश को देखना गवारा नहीं कर सकते हैं, आप उनकी जली हुई लाश को देख नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, फिर आपको कैसे बर्दाश्त होगा? फिर आप कैसे ये चाहते कि आपकी औलाद क़यामत के दिन जहन्नुम की आग में जले, जहन्नम में आपकी औलाद को डाली जाए? मेरे प्यारे साथियों, इसलिए दुनिया में अपने आप को भी कामयाब बनाओ और अपने बच्चों को भी कामयाब बनाओ। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से बचाने के लिए क्या करना है? अपने बच्चों की सही तरबियत करनी है, अपने बच्चों को दीनी इदारे में रखना है, अपने बच्चों को एक को कम अज कम मौलवी बनाना है, अपने बच्चों को दीन की खातिर किसी एक को कम अज कम लगाना है, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना है, अपने कुंबे कबीलों को भी जहन्नम की आग से बचाना है और अपनी औलाद की सही तरबियत करनी है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक किसी ने तहरीर की है, किसी ने पोस्ट की है कि मेरे भाइयों, ये 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे के नाम से मशहूर है, मेरे प्यारे साथियों, मुस्लिम लड़कियां कितनी फिर मुर्तद हो गई। ये रिपोर्ट सही नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों आप देख लीजिए, पहले ये एक में होता था, फिर धीरे धीरे सैकड़ों में बदला, फिर हजारों में बदला, अब तो लाखों केस ऐसे आ रहे हैं कि हमारे बच्चे मुर्तद हो रहे हैं। मुसलमान कौम की लड़कियां मुर्तद हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं दी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दौर याद करो, हमको तुम शुहदा इद हजर याकूब अल मौत। मेरे प्यारे साथियों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया, मौत का ज़माना करीब आया।
अब करीब के मौत आ जाएंगी, दुनिया से चल बसेंगे। तो उन्होंने अपनी सारी औलाद को जमा किया। जमा करने के बाद अपने लड़कों से कहा, अपनी औलाद से कहा, अपने बच्चों को जहन्नुम की आग से बचाने का मतलब सीखिए। मेरे भाइयों, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को जमा किया और कहा, इद क़ाल लिबनी, आए मेरे बेटों, आए मेरी औलादों, मा ताबुदून मिन बादी, आए मेरे बेटों, मेरे इंतकाल के बाद, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे इंतकाल के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? मेरे इंतकाल के बाद तुम किसकी पूजा पाठ करोगे? किसकी परस्तिश करोगे? उन बेटों ने भी जवाब दिया, क़ालू नअबुदु इलाक व इलाह आबाइक, आए मेरे अब्बू, हम आपके इंतकाल के बाद आपके माबूद की इबादत करेंगे, आपके बाप दादाओं के माबूद की इबादत करेंगे, इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक, हम आपके माबूद की इबादत करेंगे, आपके बाप दादा इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, हम अपनी जिंदगी के बारे में गौर करें कि जब हमारी मौत का टाइम करीब आता है तो क्या हम अपनी औलाद को ऐसी वसीयत करते हैं? नहीं नहीं, हम अपनी औलाद को ये वसीयत करते हैं कि फला खानदान से मुकाबला करना, फला खानदान से आगे बढ़ जाना, फला खानदान से लड़ना, फला खानदान से इंतकाम ले लेना। हम अपने बच्चों को वसीयत ये नहीं करते हैं। एक नबी को फिक्र थी कि मेरे बेटों, मरने के बाद किसकी इबादत करोगे? तो बेटों ने जवाब दिया था कि हम आपके माबूदों की इबादत करेंगे। ये तरबियत है मेरे भाइयों। हमारी मुस्लिम बहनें कितने ऐसे हो गए जो गैरों के साथ फरार हो गई है। हमें और आपको ये मजाक लग रहा है? जब पढ़ता हूँ, सुनता हूँ तो खून के आंसू रोता हूँ कि आज क्या हो गया समाज को। मेरे भाइयों, एक ज़माना था, एक दौर था कि सहाबियात कुरान पढ़ती थी और घर घर में इस्लाम की तालीम को आम करती थी। आज उन्हें बताना पड़ रहा है कि तुम गैरों के साथ फरार क्यों हो रहे हो। मेरे भाइयों, गौर करने वाली बात है। इसकी वजह यह है कि हमने अपनी बेटियों की सही तरबियत नहीं की, सही तरीके से परवरिश नहीं की। हमने उनका ठेका इस तरह ले रखा है कोई कि वो हमारा कोई है ही नहीं। हमने मोबाइल उनके हाथ में दे दिया। अगर ज़रूरत पड़े तो आप उनके हाथ में मोबाइल दीजिए, लेकिन छानबीन कीजिए। एक बंगला गज़ल किसी ने कहा कि हमारी माँ बहनें जब मोबाइल इनको मिल जाता है तो फेसबुक पर फोटो अपलोड करते रहते हैं। किसी ने खुद भी कहा था कि मुसलमानों, एक दौर ऐसा आएगा, अगर जिंदा रहो तो आप पूछिएगा, मर जाओ तो दुआ के लिए हाथ उठा दीजिएगा। आने वाली तारीख में हमारी माँ बहनों के आंचल से कोई औलाद सुख नहीं पाएगी, उनके दामन से कोई सुख नहीं पाएगी। इसलिए नहीं पाएगी क्योंकि उनके दामन ही नहीं होंगे, उनके आंचल ही नहीं होंगे। फटी पुरानी कपड़े पहनेंगे, फटी जींस पहनेंगे, जिनके कपड़े ही नहीं होंगे, उनके दामन ही नहीं होंगे, उनके आंचल ही नहीं होंगे, तो कैसे उनकी औलाद सुख पाएगी। किसी ने बंगला गज़ल में एक मिसरा लिखा है कि कुंदेशेरी मैं तुम्हें, कुंदेशेरी मैं तुम्हें কেমন তোমার বাপ, ফেসবুকেতে ছবি ছেড়ে করছো কেন পাপ। কোন দেশেরই মেয়ে তুমি, কেমন তোমার বাপ, ফেসবুকেতে ছবি ছেড়ে করছো কেন পাप। आए मेरे नौजवानों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने कुंबे कबीलों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अपनी बेटी को जहन्नम की आग से बचाओ। चंद खत्म कर दे या हम करें? नहीं, बंगला में करें। मेरे प्यारे साथियों, टाइम मेरा ख़त्म हो गया। आखिर में कह रहा हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपने अपनी बेटी का ख्याल इतना किया, परवाह इतना किया कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर जाते हैं, दरवाजे में देखता है कि एक डिज़ाइनदार चादर लटक रही है, डिज़ाइनदार पर्दा लटक रहा है। आप घर से नाराज़गी का इजहार करते हुए आ गए। बेटी ने कहा, अब्बू नाराज़ होकर चले गए, अली जाइए आप पूछिए। जब गए तो पूछा, मेरे
میرے پیارے ساتھیوں آپ نے وجہ بتائے کہ آپ کے گھر میں ڈیزائن دار پردہ لٹک رہا ہے، چادر لٹک رہی ہے، او میری بیٹی مالی والی دنیا کرا کہ بن استجل تحت شجرتین، او میری بیٹی مجھے دنیا سے کیا مطلب، میں تو مسافر کی طرح آیا ہوں اور اس دنیا میں تھوڑی دیر آرام کروں گا اور چل بسوں گا، میری بیٹی اس ڈیزائن دار پردہ کو ہٹا دو۔ میرے پیارے ساتھیوں اتنی باتیں میں نے محاسبہ نفس کے سلسلے میں رکھی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری الہ اس جلسے کو قبول عطا فرمائے، جتنی باتیں ہم نے قرآن و حدیث کے سلسلے میں کہیں اس پر سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔